so glad to be here and मुझे गेमर ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला है एंड आज मदर्स डे भी है, सो आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम्स बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच फॉर द अवार्ड. I want to congratulate Rahul ji. He's honoring all the unsung heroes, the small entrepreneurs from the small scale industries, the MSMEs, and they are contributing towards our nation's economy, and they truly, I think, not given their due, and he very kindly does this event where he is recognizing them and he's honoring them. So congratulations, and it's a great endeavor. The main purpose, the main goal of Brand Empower's Global Excellence Award is to shine a spotlight on such business owners who are actually hidden gems in our nation. जब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा मानना है देश आगे नहीं बढ़ सकता है. Ladies and gentlemen, may we please put our hands together for Shilpa Shetty. Congratulations, everybody! Okay, we have Shilpa ma'am with us in the house. Everybody make some noise! And before we move on, Rahul, can I please have you up on stage to felicitate Shilpa ma'am? और जोरदार तालियां for Rahul Ranjan Singh as well. Proudly partnered by digital marketing partner, we have WebPulse Solution Private Limited, radio partner Radio City, CSR partner WebPulse Foundation, B2B partner is GetManufacturers.com, e-commerce partner is LocalDukan.com, wellness partner is NaturalTherapyIndia.com. Now, from an impressive pool of over 30,000 nominations, Brand Empower has meticulously selected the top 120 winners across various sectors. Now, these sectors include manufacturing, services, healthcare, education, real estate, tours, travels, beauty, wellness, and spirituality. And not just these sectors, but apart from this, the glamour world is also with us tonight. From the world of Bollywood, television, OTT platforms, the dynamic realms of YouTube and influencers are also going to be joining us tonight. So ladies and gentlemen, let's begin with Global Excellence Awards 2024. Everybody make some noise! We have the next award in this category. The Gamer of the Year female goes to Payal Gaming. Payal, can we please have you up on stage? फीमेल कैटेगरी. थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि गेमिंग कितना दूर तक आ चुका है एंड या थैंक यू सो मच फॉर द अवार्ड. Hello and good evening. I am so excited right now because I have with me the very beautiful, very stunning Payal Gaming. मतलब इनका लास्ट नेम ही गेमिंग हो गया है. कैसे लग रहा है सबसे पहले आपको ये अवार्ड जीत के पायल? मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर एंड शिल्पा जी से अवार्ड मिला उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू टू माय ऑडियंस जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और गेमिंग को भी रिकग्नाइजेशन मिल रहा है. सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. बहुत बहुत सही कहा आपने. बट जब एक आई मीन जब आप छोटी थी और एक लड़की होती है तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं बोलते हुए सुना कि वो बड़ी होके कोई गेमर बनना चाहती हैं. तो क्या आपने बचपन में डिसाइड कर लिया था आप गेमर बनेंगी या ये बाय चांस हो गया?
ऐसा डिसाइडेड तो नहीं था, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये फील्ड चूज़ की। और आई थिंक आने वाले टाइम पे लड़कियां खुद से बोलेंगी कि मुझे भी गेमर बनना है या मुझे भी पायल गेमिंग जैसे बनना है। वही हम लोग कुछ डिसाइड नहीं करते बचपन में, राइट। हम लोग कुछ कोई सोचता है कि किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, बट जो डेस्टिनी में होता है वो हो जाता है। एंड या ऐसे ही गेमिंग हो गया। तो जब आप गेमर बनी तो आपके पेरेंट्स बोलते थे या आपके कजिन्स या आपके भाई बहन रिश्तेदार की मतलब क्या लड़कों वाले शौक है, पूरा टाइम गेमिंग करती रहती हो, कुछ लड़कियों वाले शौक भी पालो, तो ऐसा कभी आपको सुनने में मिला? और अगर मिला तो आप उसे किस तरीके से निगलेक्ट करती थी या किस तरीके से टैकल करती थी? मेरे डैड तो स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मॉम का रिएक्शन था वैसा जैसे आपने कहा कि ये क्या है, गेमिंग क्या कर रहे हो, फ़ोन पे लगे रहते हो, पीसी पे लगे रहते हो पूरा टाइम। और ऑब्वियसली रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा बोलते थे कि ये सब क्या करवा रहे हो आप लड़की को, यूट्यूब एंड गेमिंग ये सब मतलब लड़कियां तो यूजुअली नहीं करते हैं। बट मेरे डैड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि मैंने गेमिंग को एज अ करियर चूज़ किया। एंड मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप हमें इंस्पायर करते हो और आप हमें मोटिवेशन देते हो कि हम भी फ्यूचर में गेमर बने। सो आप छिंदवाड़ा जैसे छोटे से शहर से आई, गेमर बनी और आप रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिली, तो क्या अभी भी वो एक सपना लगता है या आपने उस फैक्ट को डाइजेस्ट कर लिया ऑलरेडी? नहीं, अब तो एक्चुअली डाइजेस्ट हो चुका है। बट जब भी कोई पूछता है इस बारे में, हम जब बात करते हैं तो जो थोड़े बहुत माइंड में जब हम उनके सामने बैठे हुए थे बातें कर रहे थे वो थोड़े ग्लिम्स आते तो ऐसा फील होता है कि यार ये मतलब गेमर्स को भी एक मौका मिला और पीएम से मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। और वही एक सपना जैसा ही है, बट अभी हो गया है क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि गेमिंग को लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं, और क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में ऑलरेडी गेमिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है, इंडिया में भी ये काफ़ी ऊपर जा रही है। एंड वही मतलब ये सब प्लेटफॉर्म्स ही है जो हमें और अच्छा मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरा अगला सवाल आपके लिए है कि जब आप इतना कंप्यूटर के सामने होते हो या मोबाइल फ़ोन पे होते हो, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आजकल हर किसी का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है कि वो लोगों के मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करने लगा है। तो आप एज अ गेमर क्या सजेस्ट करोगे कि इतना स्क्रीन टाइम अच्छा है, या आप सभी को, अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहोगे कि आप उसके अंदर भी एक मॉडरेशन लेवल मेंटेन करना चाहिए? आपका क्या कहना है उसके बारे में? आई थिंक बैलेंस करके चलना चाहिए सारी चीज़ों में, चाहे वो कोई गेमर हो या कंटेंट क्रिएटर हो या कोई भी फील्ड में हो। स्क्रीन टाइम तो आजकल सबका ही ज़्यादा है, बिकॉज रील्स लोग इतना स्क्रॉल करने लगे जब से इंस्टाग्राम एंड ये सब आ गया है, तो स्क्रीन टाइम तो यूजुअली सबका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट हम लोग जब भी, मैं मोस्टली लाइव स्ट्रीम करती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी ऑडियंस मुझे लाइव देखती है, मुझसे लाइव चैट पे इंटरेक्ट करती है, तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप अपना स्टडीज़, अपने गेम्स और जो भी आपको करियर चूज़ करना है उसका एक बैलेंस लेके चले। लाइक 4-5 आवर्स अगर आप गेम को दे रहे हैं तो आप अपने फैमिली को भी इक्वल टाइम दे, दैन अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करें, एक चेयर पे बैठ के पूरा दिन नहीं बिताए। सो हम लोग अपनी ऑडियंस को तो हमेशा यही समझाते हैं, हम लोग खुद भी उस पर वर्क करते हैं, वैसे ही अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप गेमिंग मैं अब हर साल यहाँ पे देखूँगी कैटेगरी और भी गेमर्स आए यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सो हैप्पी दैट हम लोगों ने ये चैट की, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग हियर।